بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کسٹمز بلوچستان کے 27 افسران کا کراچی میں تبادلہ کر دیا گیا۔ کسٹمز کے 16 اور 17 گریڈ کے افسران کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے، شاہ رخ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ رخ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کراچی کسٹم نے جانب سے کسٹم حکام کی جانب سے کسٹم جو بلوچستان ہے اس کے 27 انسپیکٹرز کا جو ہے وہ تبادلہ کراچی میں جو ہے وہ کر دیا گیا۔ یہ تمام جو افسران ہیں وہ 16 اور 17 گریڈ کے جو ہے وہ یہ جن کا ٹرانسفر جو ہے وہ کیا گیا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ، اور تمام جتنے بھی آفیسرز بلوچستان صوبے میں تعینات تھے ان کا تبادلہ جو ہے وہ کراچی میں سندھ میں کراچی میں جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جس میں انسپیکٹر نصیر احمد بوتانی کا جو ہے وہ ٹرانسفر جو کیا گیا ہے وہ کسٹم آڈٹ میں کیا گیا ہے، جبکہ انسپیکٹر آصف زمان کو ڈائریکٹر جنرل IOC کراچی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ انسپیکٹر فیصل کریم کو ڈائریکٹر جنرل آف کسٹم وائلیشن کا جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسپیکٹر شہزاد اختر کو ڈائریکٹر آف IOC ساؤتھ تعینات کیا گیا ہے، انسپیکٹر شبیر خان کو ڈائریکٹر آف IOC ساؤتھ تعینات کیا گیا ہے، انسپیکٹر عیسیٰ خان کو ڈائریکٹر پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ انسپیکٹر حمل خان کو ڈائریکٹر جنرل آف کسٹم وائلیشن کراچی میں جو ہے وہ تعیناتی دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے انسپیکٹر ساجد علی کو ڈائریکٹر آف لا اینڈ پروزیکیوشن کسٹمز تعینات کیا گیا ہے، جبکہ انسپیکٹر شیخ حکیم اللہ ڈائریکٹر جنرل آف کسٹم وائلیشن کراچی میں جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسپیکٹر جمیل الرحمان کاکڑ کو ڈائریکٹر آف IP انفورسمنٹ ساؤتھ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، انسپیکٹر فیصل لیاقت کو ڈائریکٹر جنرل آف IOC کراچی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، انسپیکٹر محمد یوسف کو ڈائریکٹر آف DNF PBS کراچی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسپیکٹر حبیب احمد خان بزدار کو ڈائریکٹر آف IOC ساؤتھ IOCO ساؤتھ تعینات کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے انسپیکٹر یاسر عزیز کو ڈائریکٹر جنرل آف ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی میں جو ہے وہ تعیناتی دی گئی ہے۔ انسپیکٹر لیاقت علی مکسی کو ڈائریکٹر آف انٹرنل آڈٹ ساؤتھ کسٹم جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، انسپیکٹر طارق حنیف کو ڈائریکٹر جنرل آف ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، انسپیکٹر محمد تنویر کو ڈائریکٹر جنرل آف ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، انسپیکٹر اسفند یار کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹم وائلیشن کراچی جو ہے وہ تعیناتی دی گئی ہے، انسپیکٹر محمد اسلم سرنگی آف ڈائریکٹر کو جو ہے وہ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسپیکٹر بشیر تبسم کو ڈائریکٹر آف پوسٹ کلیئرنس کا جو ہے وہ چارج دینے کی ہدایت کی گئی ہے، انسپیکٹر محمد اقبال کو ڈائریکٹر آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ کراچی جو ہے وہ تعیناتی ہے۔ اسی طریقے سے انسپیکٹر محمد زمان مزاری کو ڈائریکٹر آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ جو ہے وہ تعیناتی دی گئی ہے۔ انسپیکٹر سید مقداس رضا کو جو ہے وہ ڈائریکٹر آف IOCO جو ہے وہ کراچی کی تعیناتی دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ 27 افسران ہیں ان کو جو ہے وہ تبادلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑے تبادلے ہیں جو کہ 16 اور 17 گریڈ کے جو ہے وہ تبادلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جس میں تمام صوبے میں جو بلوچستان کے صوبے میں تعینات 16 سے 17 گریڈ کے آفیسرز تھے ان کو کراچی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، اور مختلف جو ہے وہ پوسٹوں پہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ رخ شاہ آپ کا۔ عوام کے لیے ایک اچھی خبر کہ آٹے کی قیمت میں کمی کا امکان ہے۔ 15 سے 20 ستمبر تک روس سے گندم لے کر پہلا جہاز کراچی پہنچ جائے گا۔ آٹے کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے نمایاں کمی کی جا سکتی ہے۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ آٹے کے بحران سے نپٹنے کے لیے حکومت نے نجی شعبے کو گندم کی درآمد کی اجازت دے دی۔ 15 سے 20 ستمبر تک روس سے گندم لے کر جہاز کراچی پہنچ جائے گا۔ سیریل ایسوسی ایشن کے چیئرمین مزمل چیپل کا کہنا ہے گندم کی آمد سے قبل ہی مارکیٹ میں گندم کا ریٹ 113 روپے سے کم ہو کر 105 روپے پر آ گیا۔ آج کی تاریخ میں 105 سے 6 روپے کا ریٹ ہو چکا ہے گندم کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریٹ جو ہے 105 پہ برقرار رہے گا، کیونکہ تقریباً 100 سے لے کے 103-4 روپے تک کی کاسٹنگ ہے، تو 1-2 روپے کا پروفٹ آف مارجن ہے۔ مزمل چیپل نے کہا ملک کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے نجی شعبے نے 12 جہاز کے سودے کیے ہیں۔ 12 جہاز ہمارے ہو چکے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، اور جیسے ہی یہ جہاز ہمارے کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے تو مزید بھی سودے پیچھے ہوں گے، اور امید ہے کہ 40 سے 50 جہاز جو ہے وہ نجی شعبے کو اگر اجازت دی گئی اور ڈالر کی اویلیبلٹی رہی تو نجی شعبہ لاتا رہے گا اور مارکیٹ کو اسٹیبل رکھے گا۔ مزمل چیپل کا کہنا تھا کہ گندم کی قلت کو پورا کرنے کے لیے 40 سے 50 جہاز درآمد کرنے پڑیں گے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔
अछूते आइडियाज और मुनफरद इकदाम। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवाड़ नॉर्थ नाजिमाबाद को रोल मॉडल बनाने के लिए मुतहरिक। बफर जोन सेक्टर 16A के BR सोसाइटी में रोटरी क्लब के ताउन से RO प्लांट कायम, जबकि इसी मकाम पर स्पोर्ट्स एरिया भी बनाया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अपने अछूते आइडियाज और इकदामात से मकबूल होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन हाजिम भंगवाड़ ने बफर जोन में उजड़े मुकाम पर रोटरी क्लब के ताउन से RO प्लांट लगा दिया, जबकि बकिया जगह पर आवाम के इसरार पर प्ले एरिया भी कायम किया जा रहा है। तो जब RO प्लांट बन ही रहा था तो ये जापानीज कंपनी थ्रू रोटरी आई थी कि मुझे RO प्लांट दे रही थी, तो मैंने कहा मुझे अपने सब डिविजन में चाहिए। नॉर्थ नाजिमाबाद में वहाँ पानी के बड़े मसले होते हैं, तो जब ये लग रहा तो ये काफ़ी एरिया भी था ऐसे खंडर की तरह पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा साथों साथ इसको भी क्यों ना यूटिलाइज़ कर लें। RO प्लांट तो बन ही रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ हम एक छोटा सा पार्क बना रहे हैं, एक छोटा सा प्लेइंग एरिया जहाँ बच्चे छोटी छोटी उम्र के जैसे अभी आ रहे हैं ये खेल सकते हैं। शहरियों को कहने के अपने मुनफरिद और अवामी मफाद के मंसूबे मुतारिफ कराने और इन्हें पाया तकमील तक पहुँचाने में हाजिम भंगवाड़ का कोई सानी नहीं। हर चीज़ का बिफोर आफ्टर हमारी नज़रों के सामने है, और इसका भी था कि ये बहुत ख़राब जगह थी और अब इस यहाँ पे लिटरली एक पानी का वो उन्होंने बना दिया लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। नॉर्थ नाजिमाबाद के अंदर भी कोई काम आज से पहले इतना काबिल सताइश काम होता हुआ नहीं देखा। नॉर्थ नाजिमाबाद आता हूँ मैं, हर कोने में मैं जाऊँ ना, आई कुड सी समथिंग गोइंग ऑन। वहाँ कोई काम चल रहा है, यहाँ कोई जो है सड़क बन रही है, वहाँ के कॉम्प्लेक्स बन रहा है, डिफरेंट चीज़ें जो है ना काफ़ी देखने को मिलती है। बफर जोन की तकदीर बदलने वाली है। बफर जोन क्या, स्पेशली हमारे एरिया की जो ये टूटा फूटा खंडर था ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सारा से हाजिम भंगवाड़ के इकदाम से KBR सोसाइटी का तिकोना पार्क अब शहरियों को तफरीह के साथ साफ और मीठा पानी भी फराहम करेगा, जिससे किल्लत आब की शिकायत का किसी हद तक अजाला मुमकिन बनाया जा सकेगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि महंगाई ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। होलसेल के बाद रिटेल की सतह पर भी दालों की कीमतों में 40 रुपए से 70 रुपए तक का इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफा 15 दिनों में किया गया। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। अले हो गई शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। रिटेल की सतह पर माश की दाल 15 दिनों में 40 रुपए इजाफे से 520 रुपए किलो तक, काली मसूर की दाल 70 रुपए इजाफे से 350 रुपए, मलका मसूर 50 रुपए महंगी होकर 330 रुपए किलो हो गई। तमाम चने की दाल और मूंग की दाल की कीमतों में इस्तेकाम रहा। दुकानदारों का कहना है कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात दालों की कीमतों पर भी पड़े हैं। दालों जो बाहर से आती हैं दालें, उसमें इसलिए फर्क पड़ा कि वो जो शिपमेंट होती है पेट्रोल डीजल पे हम लोग का माल आता है, जो उसका फ्यूल है वो महंगा हो गया, लिहाजा जो दालें बाहर से आती है उस पर रेट बढ़े हैं, जो फिर आके इसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कुछ दालें साबुत आती है तो उसको प्रोसेस करके काट के मशीनों पे चलाया जाता है। बिजली महंगी है, ये बिजली और पेट्रोल ने जो है ना सत्यानाश फेर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने इस काबिल भी नहीं छोड़ा है कि बआसानी राशन खरीद सकें। दालें तो हम महीने के लिए आते हैं, जब हम लाते थे 5,000 का सारा सामान, अब तो 10,000 का भी सारा सामान नहीं आता है। अब गरीब आदमी तो पाव आधा पा दाल ला सकता है। बहुत महंगी होंगी दालें भाई, 560 रुपये माश की दाल, हर चीज़ महंगी हुई भाई, हर चीज़। राशन बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए दावे नहीं बल्कि अमली इकदाम किए जाएं ताकि अशिया खुदनोश बआसानी खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। SSJC का अनोखा कारनामा लियाकताबाद 4 नंबर में गैस की लीकेज इलाका मकीनों के लिए खौफ की अलामत बन गई, तो वहीं 18 दिनों से गैस गायब होने के अमल ने भी इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। खौफनाक गड्ढा, सुई गैस लीकेज और सीवरेज के पानी से निकलते बुलबुले, ये मनाजिर हैं लियाकताबाद नंबर 4 के, जहां गैस लीकेज ने मकीनों की नींदें उड़ाकर रख दी। इलाका मकीनों के मुताबिक गैस पाइपलाइन की दुरुस्तगी के दौरान सीवरेज की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। वो अपनी ही सही करने के लिए आए थे। वो कंप्लेन इसके लिए कि गैस आगे नहीं आ रही थी, गैस घरों में नहीं आ रही, इससे 4 गली आगे और गैस नहीं है, इसकी वजह से। अब जब उन्होंने ये चेक किया तो नीचे ज़मीन का पानी भरा हुआ है। जब ये लाइन खोली गई, ये आप इधर दिखाएं ज़रा, ये लाइन जो सामने है ये वो लाइन से पानी आया है, तो फिर उसके बाद ये खुदाई हुई, यहाँ पूरा नीचे पानी ही पानी है। ख़वातीन का कहना है कि कोई भी मुताल्लिका इदारा मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं है, जिसके बायस 18 दिनों से बिना गैस के LPG गैस सिलेंडर पर खाना बनाना पड़ रहा है। भाई पूरा 18 दिन हो गए हैं, गैस बिल्कुल नहीं आई है यहाँ। पहले गैस वालों को बुलाया हमने, तो उन्होंने के गड्ढे खोद दिया और कहा कि ये हमारा काम नहीं है, आप KMC वालों को बुलाएं। खौफ है क्योंकि बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए भी जाते हैं, पारा पढ़ने जाते हैं, मगर जब बच्चे जाते हैं तो उनको गिरने का डर रहता है। खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाए,
कुछ हादसा हो जाए बड़ा। और दूसरी बात ये कि इसका ये पानी हमारे घर के लाइनों में इतना आ गया है कि वो चूल्हों में से भी निकलने लगा है। इलाका मकीनों के SSGC समेत मुतल्लिका महकमों से मुतालबा है कि मसाइल को हल किया जाए ताकि उनको अज़ियतनाक सूरत-ए-हाल से निजात मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सनअतकारों समेत घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के बासी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। मकीन कहते हैं कि बिजली और गैस की अदम फराहमी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। आयमा खान रिपोर्ट के साथ। बिजली के बाद गैस का बहरान शाह फैसल वालों के लिए बन गया वबाल जान। गैस की अदम दस्तयाबी और लोड शेडिंग ने कर दिया आवाम का बुरा हाल। खवातीन खाना कैसे बनाएं? हर घर का एक ही सवाल। दिन महीने और गुजर गए साल, बिल भर रहे हैं लेकिन गैस का नामो निशान नहीं। खवातीन नाश्ता और खाना गैस ना होने के बायस लकड़ियों पर बनाने पर मजबूर। खवातीन ने शिकवा किया कि बिल तो बर वक्त अदा कर देते हैं लेकिन गैस का मसला जूं का तू है। पूरे साल लगे, मतलब कोई गैस का कोई बिल्कुल नहीं, टाइम से भी नहीं आता, आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चे लोगों को पापे, बिस्किट, डबल रोटी कितना खिलाऊं। लकड़ियाँ जला जला कर थक गए हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं या सिंध के किसी छोटे कस्बे या देहात में रह रहे हैं। और बिल जो है वो हर महीने हमें पे करने पड़ते हैं। कुछ तो ख्याल करें। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बच्चे नाश्ता भी नहीं करते, नाश्ता करे बगैर ही स्कूल चले जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी कि लकड़ियाँ जलाना पड़ रही हैं। महंगाई के इस दौर में शाह फैसल कॉलोनी की खवातीन ये कहने पर मजबूर हो गईं कि जदीद दौर में आगे जाने के बजाय लकड़ियों पर खाना बनाकर पत्थर के दौर में वापस आ गए हैं। आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में बिजली की अदम फराहमी पर लाइन्स एरिया के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर घंटों घंटों बिजली गायब रहती है। उन्होंने के इलेक्ट्रिक से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कराची में बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश शहरियों के लिए दर्दे सर बनी हुई है। लाइन्स एरिया में 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीन कहते हैं भारी भरकम बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है, बच्चे इतनी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारा नाश्ता पूरा है। एक तो गैस की प्रॉब्लम, ऊपर से लाइट की। सही है, सुबह जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। ये समझ लो 24 घंटे में, जैसे भाई ने बोला है कि 4 घंटे आती है और बाकी ये सारे 20 घंटे जो है गायब। ठीक है, बिल वैसी के वैसे आ रहे हैं हमारे भरपूर। बिल तो आ रहे हैं महंगे अपर, लेकिन लाइट नहीं है। अब 18 घंटे में से 6 घंटे लाइट आ रही है। अब ये आपके सामने घर हैं, इसमें कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ी लगी हुई हैं। 300 यूनिट 400 यूनिट का बिल बना रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है। लाइन्स एरिया UC 9 के चेयरमैन आबिद अली कहते हैं कि बिजली ना होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। लोड शेडिंग इतनी है यहाँ 24 घंटे में तकरीबन 6 घंटे मुश्किल से जो है ना लाइट आती है। अब ये रात में भी लाइट का सिलसिला यही है। अच्छा, जो बिल भर रहा है वो भी पिस रहा है, जो नहीं बिल भर रहा है वो भी पिस रहा है। लाइन्स एरिया के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में पार्किंग के मसाइल बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिटी कोर्ट के बाहर पार्किंग का मुनासिब निज़ाम न होने से वकला और साइलिन ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। सिटी कोर्ट के बाहर पार्किंग का फुकदान, वकला और साइलिन दोनों परेशान। सिटी कोर्ट के बाहर कोई मखसूस पार्किंग न होने के सबब गैर कानूनी पार्किंग की राह हमवार हो गई। पार्किंग माफिया सिटी कोर्ट का रुख करने वालों की मजबूरी से फायदा उठाने लगी। एडवोकेट अशरफ कुरैशी का कहना है कि बाइक के 30 और कार के 100 रुपए लिए जा रहे हैं, फिर भी चोरी हो जाए या लिफ्टर उठा ले तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। लोग पैसे भी देते हैं, चोरी भी होती है मोटरसाइकिल, और उसके बाद कोई सुनवाई किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं। हालांकि हाई कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 5 रुपये पार्किंग और 10 रुपये जो है या 15 रुपये गाड़ी के पार्क करेगी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी के 100 रुपये चल रहे हैं, मोटरसाइकिल के 30 रुपये चल रहे हैं। साइलिन भी परेशान नजर आए। एक साइल अपनी बाइक की तलाश में सरगर्दा था, कहा अब थाने जाना पड़ेगा। सिटी कोर्ट आया था, पार्किंग का कोई खुसूसी इंतजाम ही नहीं। मैं सिटी कोर्ट आया था तकरीबन 2 घंटा पहले। बाइक मैंने यहाँ पे पार्क की थी अपनी, और जब अभी मैं आया हूँ तो मेरी बाइक यहाँ पर मौजूद नहीं है। सही है, और जगह लगाई मैंने इसी पार्किंग इसी रो में थी जितनी जिसकी सबकी खड़ी हुई है, मेरी भी गाड़ी खड़ी हुई थी।
लेकिन अभी वो गाड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हम यहाँ से जाएंगे थाने, थाने से बाइक उठाएंगे अपनी। नो पार्किंग आपने दीवार पे तो लिख दिया, तो कोई पार्किंग तो प्रोवाइड करके दें कि अगर अपनी परेशानी में कोई इंसान आया हुआ है। ऊपर से दूसरी परेशानी है कि गाड़ी लिफ्ट हो जाती है यहाँ से। अब गाड़ी जब लिफ्ट होगी तो इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाएगा। इंतजामिया पार्किंग का मसला हल कराने में मुकम्मल बेबस नजर आती है। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शाह फैसल टाउन नंबर 5 रोशन आबाद में फ्राहमी निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। मकीनों का कहना है कि सालों से पानी की फ्राहमी बंद है। जगह जगह उबलते गटर इलाके में बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लाइनों में पानी आता नहीं और गटर का पानी गलियों से जाता नहीं। ये दुहाइयाँ हैं शाह फैसल टाउन नंबर 5 रोशनाबाद के हजारों मकीनों की। ये मसाइल है कि ना यहाँ लैन तो है मगर पानी नहीं है, ना पानी आता और ना भंगी को दो 2000 1500 दो तो भंगी जब आता, वरना नहीं आता। तो खाली पीने के लिए जो इस्तेमाल हम करते जाके पानी जो लाना पड़ता है हमें, वही 100-150 रुपये का पानी है रोज़ का, जिसके अंदर 2-2.5 घंटे हमारे ज़ाया हो जाते हैं लाइन के लगने के अंदर। और अगर वाटर पंप सामने ही है हमारे, बिल्कुल इलाके के सामने आप जाएंगे ना वाटर पंप है, वहाँ से पानी आ नहीं रहा। आगे प्लेटें लगाई हुई हैं, बिल्कुल बंद करा हुआ है इन्होंने सिस्टम को, क्योंकि एक माफिया है वो मुसलसल पैसे कमा रहा है। अपने नाम के बरअक्स रोशनाबाद की गलियां तंगो तारीख हैं, जहां के मकीन पानी का टैंकर भी मंगवाने से कासिर हैं। कहते हैं पानी के कैन खरीदने और बीमारियों के इलाज पर खतीर रकम खर्च करने पर मजबूर हैं। हम लोगों का यही मुतालबा है कि हमें पानी दिया जाए। वाटर एंड बोर्ड कॉरपोरेशन के हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि हमने खबरों में सुना है कि वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम रोशनाबाद पूरी कराची में पानी देंगे। गटर लाइनें भर जाती हैं, ना गैस की परेशानी है, पानी की परेशानी, हर चीज़ महंगाई इतनी हुई है, हुकूमत ने की हुई है। क्या करेगा इंसान, ये बताए। कैसे लेती हो फिर? पानी मोल लेकर पीते हैं हम तो। रोशनाबाद के मकीनों का कहना है कि वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन फौरी इनके फराहमी और निकासी आपके मसाइल हल करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल आम इंतखाबात में बतौर रुकन कौमी असम्बली बल्दिया टाउन से हिस्सा लेंगे। एमकेएम राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। एमकेएम की जानिब से जल्द इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास जो है पाकिस्तान हाउस में हुआ है। इस इजलास की सदारत जो है कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में जो है एक अहम फैसला एमकेएम की जानिब से जो है सामने आया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल को एमकेएम ने बल्दिया टाउन से जो है बतौर कौमी असम्बली का उम्मीदवार जो है नामजद कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल बल्दिया टाउन से जो है बतौर रुकने कौमी असम्बली एमकेएम के उम्मीदवार होंगे। राब्ता कमेटी ने मुस्तफ़ा कमाल को NA 239 से टिकट देने की जो है मंजूरी दे दी है। NA 239 की नशिस्त की अगर बात की जाए तो 2018 में इस अहम तरीन नशिस्त से PTI के रहनुमा फैसल वाउडा जो है वो कामयाब हुए थे। बाद-ए-अज़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें जो है नाअहल करार दे दिया गया था। फैसल वाउडा ने 2018 में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के साथ झूठा हलफनामा जमा करवाया था, जिसके सबब जो है वो नाअहल हुए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद फैसल वाउडा ने कौमी असम्बली की रुकनियत से भी जो है इस्तीफा दे दिया था। NA 239 की ज़मीनी इंतखाबात में जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान नंदोखेल जो है वो कामयाब उम्मीदवार थे और वो अभी भी अपनी नशिस्त पर जो है वो मौजूद है। 2018 में जो है NA 239 के हल्के से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है हिस्सा लिया था। फैसल वाउडा की नाअहली के बाद जो है होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी जो है बतौर रुकने कौमी असम्बली जो है खड़े हुए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान नंदोखेल उन्हें शिकस्त देने में जो है कामयाब हुए थे। एमकेएम की जानिब से जल्द जो है इंतखाबी मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। इस अहम तरीन इजलास में इंतखाबी मुहिम तेज करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ टाउन की सतह पर जल्द से करने से मुतालिक भी जो है मुशावरत हुई है। ठीक है, अहम इजलास था जिसके हवाले से शोएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में के इलेक्ट्रिक के अमले पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई।
ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में तौसी कर दी। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक के अमले पर तशद्दुद का केस तूल पकड़ने लगा। मुकदमे में नामजद मुलजिम सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी में पेश हुए। फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए केस की अगली समाअत 18 सितंबर मुकर्रर कर दी। वकील शर्जील गोपलानी एडवोकेट मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अदालत में दलाइल देते हुए बताया कि मेरे मौक्किल ने अमले को तशद्दुद से बचाया था कि शर्जील गोपलानी और जो दीगर इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, ये एक्चुअली उन के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन की बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वहाँ मौजूद थे। इनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी बोले कि के इलेक्ट्रिक ने मेरा गैर मुल्की दौरा ज़ाया करवा दिया। देखिए, मैंने पिछले महीने की इस महीने की 5 तारीख को डेलीगेशन लेके कनाडा जाना था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट करना था, जिसमें 35 के करीब हमारे ताजिर जो है उन्होंने वहाँ जाके B2B आपके बिज़नेस टू बिज़नेस जो मुआहदे करने थे नए, लेकिन इस केस की वजह से हम कनाडा भी नहीं जा पाए हैं, वैंकूवर, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी सुबकी हो रही है। मुकदमा के इलेक्ट्रिक के मैनेजर ताहिर अली की मुदियत में नेपियर थाने में दर्ज है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कारोबारी हवाले से आपको बताएं कि क्रैकडाउन के खौफ से डॉलर के स्मगलर्स फरार होने लगे। इंटरबैंक के मुकाबले ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे सस्ता मिलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता होकर 301 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक ही दिन में डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 300 रुपये तक गिर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर के स्मगलर्स क्रैकडाउन के खौफ से गायब हो गए। डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं, अब फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 300 रुपए तक गिर गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 79 पैसे सस्ता होकर 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचे ने कहा कि इंटरबैंक से भी ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता मिलने लगा है। कहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 30 से 35 रुपए का बड़ा फर्क खत्म हो गया है, जो मुल्की मईशत के लिए बहुत अच्छा है। और हमने ये देखा कि पिछला जो हफ्ता गया उसमें और आज के दिन मिला के तकरीबन 35 रुपए का जो गैप था ओपन मार्केट और इंटरबैंक का, वो ख़त्म हो गया और इस वक्त डॉलर ख़रीदने वाला कोई नहीं है। क्रैकडाउन की वजह से डॉलर सस्ता होने के साथ दीगर करेंसी भी सस्ती हो गई। ओपन मार्केट में यूरो 325 रुपए पर बरकरार, बरतानवी पाउंड 2 रुपए कमी से 379 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमाराती दरहम 2 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 82 रुपए 50 पैसे तक गिर गया और सऊदी रियाल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता होकर 79 रुपए 20 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। ताजिरों ने हुकूमत से सस्ती बिजली, गैस और पेट्रोल के लिए ईरान से मुआहदा करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ट्रेडर्स एसोसिएशन मेरिट रोड अहमद शमसी का कहना है कि ताजिरों के एहतजाज के बावजूद हुकूमत की आंखें नहीं खुल रही। काबिश मेमन की रिपोर्ट। महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल, कारोबार का हो गया पहिया जाम। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दी। चेयरमैन ट्रेडर्स एसोसिएशन मेरिट रोड अहमद शमसी ने कहा, IMF से मुआहदे पर शादियाने बचाए गए, गोया हर मसला हल हो गया। IMF ने बिजली की कीमतों पर रिलीफ देने से इनकार कर दिया, मगर हमें बिजली और पेट्रोल पर रिलीफ चाहिए। हमें बिजली के बिलों में रिलीफ चाहिए, हमें पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ चाहिए। हमारी तहरीक के दौरान ही आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, बिजली की बढ़ाई, और इस महीने आप गैस की बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अहमद शम्स बोले, ईरान सस्ती बिजली, गैस और पेट्रोल देने को तैयार है, हुकूमत ईरान से मुआहदा करे। ईरान आपको सस्ती बिजली, सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल देने को तैयार है और फिनिश देने को तैयार है। पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल नहीं, फिनिश पेट्रोल देने को तैयार है। लेकिन क्या वजूहत है, कौन से अनासिर हैं जो वो नहीं लेने देते? ताजिर रहनुमा ने कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी किए बगैर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। कैमरामैन मुहिब के साथ काविश बेबन, सिटी 21।